Good morning, students. How are you? I hope you are fine and preparing your examinations for revision test 3. Students, first of all, I want to request you be safe at your homes. If you want to go out, you are to just follow certain things that becomes your responsibilities like wearing mask, follow social distancing because you know very well safety is very convenient way of living in this corona. So I request you please follow these such rules. Today I welcome you in our computer class of chapter number 8, that is creating web pages in HTML. In the last class of last chapter I have explained you what is HTML, what are the different its features, how you can create web pages, how to save it in through activities and others. So in this chapter we will cover what is HTML5, creating and saving web pages, HTML basic tags, displaying web pages in a browser which you have already done, modifying paragraph text, heading tag and formatting of text. Now, first of all, I will tell you the HTML language is basically used to design web pages, and HTML file is its latest version which you are using. The structure of HTML document will be as follows in HTML5. First is that doc type declaration. This is the section where you will specify that now we are going to make an HTML document. Second, HTML tag. This HTML tag appears at the beginning and end of the HTML document. The first HTML tag specifies that now we are going to start an HTML document, and last HTML with slash shows that you are closing or ending a web page in HTML. Then document head. This section is basically used to specify the heading of the document that comes after the HTML tag because we will give the heading of it. Then it comes metadata. Metadata means data about data. On a web page, we can include author information, the type of text editor which we are using to create web page, description on the content, relevant keywords. All these words are not included into the document. That is why this data is an optional HTML document. Then it comes document title. The title tag is used to give the title of the web page which will appear in the head of the document, and always you will find it in the address bar of the website or web page. Then body tag. After the head tag that it comes body tag. Most of the text and formatting of the documents appear in the body tag of HTML. Whatever the appearance and text, features, images, shapes you want to add on a web page, all those are added in the body section of the document. It is also the container tag which we are to start and close. Then it comes the basic HTML tags. बच्चों जैसे मैंने आप लोगों को स्ट्रक्चर बताया है, स्ट्रक्चर में क्या है, सबसे पहले जो कि हम डॉक्यूमेंट की टाइप डिक्लेरेशन करते हैं HTML5 के अंदर, फिर उसका HTML टैग आता है जो हमारा स्पेसिफाई करता है हमारे डॉक्यूमेंट की बिगनिंग और एंडिंग. उसके बाद हेड सेक्शन आता है दैट इंक्लूड्स द हेडिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट एज वेल एज द टाइटल ऑफ द डॉक्यूमेंट. द हेडिंग इज जो हेडिंग है हमारी वो हमारे वेब पेज के स्टार्टिंग में आती है, इन द टॉप पर आती है,
और जो आपका टाइटल है वो हमेशा जो है आपके ब्राउज़र के एड्रेस बार के अंदर डिस्प्ले होता है। उसके बाद आता है मेटा डाटा। मेटा डाटा का मतलब है डाटा अबाउट डाटा, मीन्स जो हमने वेब पेज के अंदर हम डिफाइन किया हुआ है उसके बारे में इंफॉर्मेशन होती है, जिसके अंदर जो है आप मेटा डाटा के अंदर उसको डिफाइन कर सकते हैं। उसके बाद है बॉडी टैग। बॉडी टैग का मतलब क्या है कि बॉडी टैग के अंदर जो है आप लोग जो भी इंफॉर्मेशन आप वेब पेज पर देना चाहते हैं या किस तरह की लुक अपने वेब पेज की चाहते हैं, इस तरह से जो है आप लोग उसके अंदर डिफाइन कर सकते हैं और वही आपको डिस्प्ले होगा। नाउ इट कम्स बेसिक HTML टैग्स। जो HTML के टैग्स हैं वो क्या हैं? दीज आर द सम कीवर्ड्स विच कंट्रोल्स द लेआउट एंड फॉर्मेटिंग ऑफ द HTML डॉक्यूमेंट्स। जो हमारे टैग्स हैं वो हमारा एक कुछ कमांड्स का या इंस्ट्रक्शंस का काम करते हैं जो कि आपका ब्राउज़र को कंट्रोल में रखते हैं। सबसे पहले आता है डॉक्यूमेंट डिक्लेरेशन। डॉक्यूमेंट डिक्लेरेशन जैसे कि मैंने अभी आपको बताया हम स्टार्टिंग में लिखते हैं, वो हमारा स्पेसिफाई करता है कि हमने जो है डॉक्यूमेंट जो है HTML में डिक्लेयर किया है, उसको हम लोग डॉक्यूमेंट को अपने ब्राउज़र के अंदर देख सकते हैं। उसके बाद HTML टैग जो है हमारा यूज़ होता है HTML के डॉक्यूमेंट को स्टार्ट और क्लोज करने के लिए, हेडिंग टैग हेडिंग देने के लिए, टाइटल टैग टाइटल देने के लिए, मेटा डाटा जो है एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो है अपने टैग्स के बारे में, अपने कंटेक्स्ट के बारे में देने के लिए यूज़ होता है हमारा। बॉडी टैग के अंदर जो भी मोस्ट ऑफ हमारा पोर्शन आता है, जो भी हमारा वेब पेज आता है, उसका लेआउट आती है, फॉर्मेटिंग आती है, वो हम जो है बॉडी सेक्शन के अंदर डिफाइन करते हैं। उसके अंदर डिफाइन करने के बाद जो है हम आगे चलते हैं मॉडिफाइंग पैराग्राफ टेक्स्ट, क्योंकि जो भी हम इंफॉर्मेशन डालते हैं उसके पैराग्राफ में यूज़ होती है। पैराग्राफ बनाने के लिए जो है हम यूज़ करते हैं पी टैग का, मीन्स स्टार्टिंग अ न्यू पैराग्राफ मीन्स व्हेन वी वांट टू स्टार्ट अ पैराग्राफ फॉर दिस पी टैग इज यूज्ड। मीन्स पी टैग का यूज़ करके जो है हम अपना पैराग्राफ बना सकते हैं, और जब आपको पैरा ख़त्म करना है तो आप लोग पी टैग का आप लोगों को क्लोज करना है, जिसका कि जो है आप लोगों का एक पैराग्राफ बन जाएगा। नेक्स्ट स्टार्ट करने के लिए आपको दोबारा से अपना पी टैग जो है डिफाइन करना पड़ेगा। नेक्स्ट हमारा आता है स्टार्टिंग अ न्यू लाइन। जैसा कि बच्चों आप लोग जानते हैं MS वर्ड के अंदर एंटर प्रेस करते हैं और नेक्स्ट लाइन के अंदर शिफ्ट हो जाते हैं, नेक्स्ट लाइन में चले जाते हैं। परंतु HTML के अंदर ऐसा कुछ नहीं है। चाहे आप नोटपैड में जितने मर्जी एंटर लगा करके सेव कर लीजिए, आपका टेक्स्ट फिर भी वहीं सेम लाइन पर आएगा जो आप लोगों का HTML के अंदर दिखाएगा। जो आपका वेब पेज होगा उसका टेक्स्ट सेम लाइन के अंदर अपीयर होगा, चाहे कितने मर्जी आप लाइनें बना लीजिए नोटपैड के अंदर। क्यों? क्योंकि हमने जो कि अपने ब्राउज़र को इंस्ट्रक्शन नहीं दी है कि आपने जो है नेक्स्ट टेक्स्ट को नेक्स्ट लाइन में मूव करना है। उसको करने के लिए जो कि जब आप लोग कोई नई लाइन स्टार्ट करना चाहते हैं, उसके लिए हमारे पास आता है BR टैग। BR मीन्स ब्रेक रो। What it will do, it will break the line and move the next text into the new line so that you can create a line. This BR tag is an empty tag. You just only to start it, you do not need to close it. Then it come inserting a blank space. Now it is a new concept for you students. न्यू concept का मतलब क्या है? आप लोग जो है MS वर्ड के अंदर स्पेस दबाते हैं, आपका गैप आ जाता है, नेक्स्ट स्पेस दबाते हैं, एक गैप और आ जाता है। टैब की प्रेस कर दीजिए, वो अपने जितना भी उसको स्पेसिफाई किया 1 इंच 1.5 इंच 2 इंच उतने का गैप ऑटोमेटिकली आ जाएगा। नोटपैड में आप ऐसा कर सकते हैं, परंतु आपका ब्राउज़र उसको डिस्प्ले नहीं करेगा क्योंकि हमने इंस्ट्रक्शंस नहीं दी है। उसको करने के लिए जो हमारे पास टैग आता है $NBSP टैग। इट इज़ यूज टू गिव द स्पेस ऑफ वन टैब स्पेस इनटू द वेब पेज। अगर आपको अपने वेब पेज के अंदर टेक्स्ट के बीच में गैप देना है तो उसके लिए जो है $NBSP जो है उसका यूज़ करना है, ताकि जो है आप अपने उसके अंदर जो टेक्स्ट आपका आएगा उन वर्ड्स में गैप दे सकें प्रॉपर। One time you will write $NBSP, it will give only a one tab space, means suppose you can say 1 inch space between the text, it may be less or more। तो ये आपका यूज़ होता है टेक्स्ट के बीच में गैप देने के लिए $NBSP। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज जो है हमने किया है अपने चैप्टर के अंदर HTML5 क्या है, उसको जो है हमने यूज़ कैसे करना है,
डिफरेंट स्ट्रक्चर क्या है हमारे डॉक्यूमेंट का जो कि हमने अभी बनाया हुआ है। सबसे पहले HTML टैग, फिर डॉक्यूमेंट डिक्लेरेशन आ जाएगी। सबसे पहले डॉक्यूमेंट डिक्लेरेशन, फिर HTML टैग, हेड टैग, टाइटल टैग। ये सब आने के बाद टाइटल क्लोज होगा, हेडिंग क्लोज होगी। फिर हमारा बॉडी सेक्शन स्टार्ट होता है। बॉडी सेक्शन के अंदर जो है हम वो चीज़ डालते हैं जो हमें अपने वेब पेज के ऊपर चाहिए। उसके बाद जो है हमारे फिर आ जाती है मॉडिफाइंग ऑफ द पैराग्राफ। न्यू पैराग्राफ कैसे बनाना है, पी टैग का यूज़ करके न्यू पैराग्राफ बनता है। नई लाइन कैसे बनती है, बियर टैग का यूज़ करके नई लाइन बनती है। अगर आपको टेक्स्ट के बीच में गैप देना है तो एम्परसेंट NBSP टैग आपका यूज़ होता है। तो इस तरह से स्टूडेंट्स जो है आप लोग इनका यूज़ करके एक प्रॉपर वेब पेज डिज़ाइन कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, फॉर टुडेज क्लास इट्स इनफ। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।